Hello, Assalamu alaikum to all of my AAU followers and my AAU fellows. Today's video is going to be about the crash course of 8612. As I have once uploaded the crash course of 86110, sorry, 8610, which is 8610 course, and I got so much good response from that video. So I have decided to make another video about 8612 crash course. So first of all, I want to introduce you with the most common question of chapter one. Chapter one. Okay, so we have not much time. We have very uh, we have now very few days left for our paper. I have my paper tomorrow, and most of guys, I think, have their paper tomorrow. So first of all, the chapter one. So chapter one. In chapter one, the most important question which I have seen throughout in the papers, if we talk about the previous five years paper. So first question, which is related to the profession, right? The difference between the profession and right, the difference between profession and professionalism. Profession and professionalism. Okay, that question they repeated most of time, so you all make sure that you have done the question profession and professionalism. This is the first question, and the second question, which is the most common, I'm writing here, which is the characteristic of effective teaching. So second question is characteristic of effective teaching. So we're going to learn these two questions in details, and rest of unit we will just see the things by our doing. Okay. So I hope that you have all noted down these questions, and the one more thing is that in the end of the video, I will share with you guys the link of the all the slides. I actually these slides we have got from our tutor when they were giving us the lectures. The all slides belongs to them. So I'll share these slides at the end. So make sure that you have watched full video, because at the end of the video, I'll tell you that how can you download these all slides. I have the 8 full slides for you guys, so you can prepare these in a not in a second, but yeah, in a minute. So most important question: discuss characteristic of effective teaching and differentiate between the professionalism and the profession. These are the most two important question. The other question is the discuss importance of values in teaching. So they all belongs to that characteristic of effective teaching. So yeah, these are the two questions which mostly repeat themselves in 8610 question. तो चलते हैं सबक की जानब. इसमें आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैं को हम या मैं प्रोफेशन से बारे में. तो इसके लिए आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन को एज इट इज रट्टा लगाना पड़ेगा. तो प्रोफेशन सिंपली क्या है, अगर आप देखें तो इट्स अ वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो बेसिकली ये एक एडवांस ट्रेनिंग है. अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद थी तो आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज अ लर्नड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द फॉर्मल ट्रेनिंग. अगर आपको पेपर में ये भी भूल जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ फॉर्मल ट्रेनिंग, or it is defined as the learned activities that involve the formal training but within a broad intellectual context. तो चले आए इन डेफिनेशंस को तोड़ के थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. जो पहली डेफिनेशन है उसमें यही बताया गया है कि जो प्रोफेशन है वो एक वोकेशन है जो कि रिक्वायर करता है एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग. तो सिंपली क्या है जी, अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन याद करना चाहें तो प्रोफेशन इज अ वोकेशन. प्रोफेशन इज अ वोकेशन. वोकेशन होता है पेशे को बोलते हैं. वोकेशन जो है आपका वो आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, आपका करियर है उसको बोलते हैं. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके ये आसानी के लिए ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन लाइक आपका प्रोफेशन जो है उसको वोकेशन कहते हैं. तो सिंपली 3 चीजें इसमें बतानी है कि अ प्रोफेशन इज अ वोकेशन दैट रिक्वायर्स द एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो 2 बातें हमें इसमें चाहिए, एक तो एडवांस एजुकेशन और दूसरा इसमें आपको चाहिए एडवांस
ट्रेनिंग। तो एक दफा आप इसको रिवाइज करो, इजी सी है। A profession is a vocation that require advanced education and advanced training. That's it. अगर आप दूसरी डेफिनेशन याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी लर्नड एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मल ट्रेनिंग बट विद इन अ ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। है तो फॉर्मल आर्म ट्रेनिंग, बट क्या है, ब्रॉड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में। इसके लिए आपको उस फील्ड के अंदर जाके देखना पड़ेगा। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, इंटेलेक्चुअल होता है वो जो हम पढ़ रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट होता है टू द रेफरेंस, उस हवाले से। तो हमने दो डेफिनेशन बड़ी आसानी से याद कर ली। पहली डेफिनेशन था थी कि प्रोफेशन कोई भी ऐसा पेशा है जो कि जिसमें इन्वॉल्व होता है आपकी एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि ये इसका पहली शर्त ही यही कि आपके पास क्या होना चाहिए, एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग। दूसरी बात ये है कि इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है, लर्नड एक्टिविटीज है। आपने वो सरगर्मियां सीखी पहले, खुद लर्नड एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मल ट्रेनिंग बट विद इन अ ब्रॉड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हो मुख्तलिफ प्रोफेशन आप एग्जांपल खुद से दे सकते हो, तो रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ऑल दैट। पहले गार्डनर की डेफिनेशन हमने याद की, अब गार्लिक से याद रख लो गार्डनर 24, और डोरबेल से याद रख लो बेल 1973। तो हमने गार्डनर से गार्डनर की डेफिनेशन याद रख ली, या गार्नियर जो ब्रांड है उससे रख लो, गार्डनर 2004 और बेल 1973। हाँ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप करेक्टरिस्टिक लाजमी याद करो। तो हम कुछ कुछ उनके नाम रख लेते हैं करेक्टरिस्टिक के। तो फर्स्ट, प्रोफेशन क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन फिलोसफी अक्वायर्ड थ्रू एडवांस ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है हमारा प्रोफेशन वही होना चाहिए जो हमने पढ़ा है, जो हमने थ्रू आउट अपनी एडवांस ट्रेनिंग में हासिल किया है। तो अब सबसे पहले है कि प्रोफेशन बेस्ड होना चाहिए उस फिलॉसफी पे जो हमने एक्वायर्ड किया, हासिल किया थ्रू एडवांस ट्रेनिंग। मतलब हमने पहले एडवांस एजुकेशन ली, फिर हमने एडवांस ट्रेनिंग ली। तो हमारा प्रोफेशन ट्रूली बेस्ड होना चाहिए, या वो हमारी उस फिलॉसफी पे बेस होना चाहिए जो कि हमने एडवांस ट्रेनिंग से हासिल किया। अगला ये है कि प्रोफेशनल रेंडर यूनिक पब्लिक सर्विसेज विच रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। इस जुमले को आप आसान बना सकते हो कि जो हमारा सेकंड है कि जो हमारा प्रोफेशनल्स है, जो हम ये प्रोफेशन की ही बात हो रही है, तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो रेंडर यूनिक पब्लिक सर्विसेज। जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी यूनिक मतलब अलग अलग किस्म की अपनी खिदमात पेश करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। तो आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल रेंडर या provide the unique public services which require extensive training। तो दूसरी पहली करेक्टरिस्टिक ये थी कि ये उस फिलॉसफी पे बेस होना चाहिए जो कि उस ट्रेनिंग से हासिल किया गया। दूसरा ये कि जो खिदमात प्रोफेशनल सर अंजाम देते हैं उसके लिए उन्हें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। तो दूसरी का आप नाम याद रख लो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, और पहले का आप रख लो उस फिलॉसफी पे बेस होनी चाहिए। अगला, थर्ड, प्रोफेशनल वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। तो कहता है कि प्रोफेशनल्स काम करते हैं वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन, वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। जो हर एक प्रोफेशनल है, हर एक अदारे का बंदा है, वो हर काम करने से पहले तैयार होता है जितनी उस पेशे की जरूरत या नेचर होती है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। तो तीसरा हमने ये पढ़ लिया कि इसके लिए प्रोफेशनल वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। चौथा ये है कि ये स्किल बेस है, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल ही होगा प्रोफेशन के पास। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो उसके पास अपना स्किल है, कोई पढ़ाने का है, ठीक करने का है, गाड़ी ठीक करने का है। तो प्रोफेशनल आर बेस्ड ऑन अ स्पेशलाइज्ड स्किल। तो फिफ्थ वन है जी कि प्रोफेशनल सर्विस शुड बी रेंडर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। जो प्रोफेशनल की सर्विसेज हैं वो आवाम की खिदमत के लिए होनी चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक को दोबारा देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग से कोई चीज़ निकले ना। मैं एक चीज़ हमेशा से महसूस करती हूँ कि जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है वो ये है कि हम लोगों को रिवाइजेशन बहुत करनी चाहिए। इतना अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो वो भूल जाएगा पेपर वाले दिन। अच्छा, तो हमने 5 करेक्टरिस्टिक याद कर लिए, जिसमें पहला करेक्टरिस्टिक ये था। हम शुरू से शुरू करते हैं कि जिस आपका प्रोफेशन अक्वायर्ड थ्रू एडवांस ट्रेनिंग। तो हमारा प्रोफेशन उस फिलॉसफी पे बेस्ड होना चाहिए जो कि हमने हासिल किया थ्रू एडवांस ट्रेनिंग से। तो सबसे पहले हमने एडवांस
ट्रेनिंग से बात शुरू करनी है, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग। दूसरे नंबर पे ये था कि जो हमारा प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी खिदमात पब्लिक को देते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हमारा हो गया सेकंड वन। तो सेकंड, प्रोफेशनल रेंडर्स यूनिक पब्लिक सर्विसेज, और यू कैन से द प्रोफेशनल्स प्रोवाइड यूनिक पब्लिक सर्विसेज विच रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। तीसरे पे जाएं तो प्रोफेशनल वर्क नीड थ्रू प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। तो तीसरा ये है कि जो हमारे प्रोफेशनल है अपने यूनिक पेशे की वजह से, क्योंकि लादा लादा पेशा है तो उन्हें हर काम से पहले तैयारी जरूरी है। तो तीसरा क्या है, वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन, वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन। अगला चले तो चौथा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं। प्रोफेशंस जितने भी प्रोफेशन है वो बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल। अब डॉक्टर टीचर नहीं हो, डॉक्टर टीचर भी नहीं हो, मतलब डॉक्टर टीचर तो हो सकता है लेकिन उसका असली पेशा डॉक्टर है। डॉक्टर मैकेनिक का काम नहीं कर सकता डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरी ने डॉक्टर सीखा है तो वो डॉक्टर ही करेगा। इंजीनियर डॉक्टर ही है, सॉरी, जो इंजीनियर है वो अपना ही काम करेगा, वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। तो स्पेशलाइज स्किल से मुराद ये। अगला जो है पांचवा, वो ये है कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो बेस्ड होंगी बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के, कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए की जाएंगी। तो हमने बात शुरू की एडवांस ट्रेनिंग से लेके सबसे पहले ये बात की कि जितना भी स्किल बेस्ड प्रोफेशन है वो उस फिलॉसफी पे बेस्ड होना चाहिए जिससे उसने ट्रेनिंग ली, एडवांस ट्रेनिंग। दूसरा ये कि इससे यूनिक पब्लिक सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से हासिल की जाएंगी। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि वर्क नीड्स थ्रू प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ यूनिक नेचर ऑफ ईच प्रोफेशन। चौथा, स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए। पांचवा, प्रोफेशनल सर्विसेज शुड बी रेंडर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। मजीद आगे चलें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोफेशन। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ हेडिंग्स है, तो 4 5 6 किस्म के कुछ मैंने करेक्टरिस्टिक यहाँ पे नोट डाउन किए। उसमें यह है कि अ प्रोफेशन रिक्वायर्स एन एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर एज वेल एज बेसिक लिबरल फॉर्मेशन। तो कोई भी अगर प्रोफेशन है जो आप लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको लिबरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक लिबरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है आजाद, मतलब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप बाउंडेड नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही किस्म की लेनी है। जब हम बचपन में प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल पढ़ते हैं तो उसमें मैथ, साइंस, इस्लामियात सब पढ़ते हैं। तो बेसिक लिबरल इंफॉर्मेशन प्लस एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एजुकेशन। एक्सटेंडेड एजुकेशन मतलब जो हम स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड में लेते हैं, जैसे एज अ मास्टर स्टूडेंट और एज अ एमफिल। तो एक्सटेंडेड एजुकेशन ये आपका एक्सटेंडेड एजुकेशन हो गया। तो a profession requires extended plus uh, as well as basic liberal foundations और basic liberal information। तो प्रोफेशन को रिक्वायर होनी चाहिए एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर एज वेल एज बेसिक लिबरल फाउंडेशन। अगला आप देखें तो प्रोफेशन के पास क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल मतलब जिसने रट्टा लगाया हुआ है शुरू से, लीडिंग टू डिफाइन स्किल, एबिलिटीज एंड नॉर्म्स। तो उसके पास कुछ 4 5 किस्म की चीजें होनी चाहिए। एक तो एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज जो उसने शुरू से पढ़ा, जो उसको लेके जाएगा उस स्किल की तरफ, जिस स्किल के बारे में वो बचपन से पढ़ता रहा कि मैं टीचर बनूंगा तो टीचर ये करता है, तो फिर वो उसे स्किल की तरफ लेके जाएगा कि स्किल क्या है, कि हाँ वो पढ़ाएगा कैसे, स्किल प्रैक्टिकल। तो पहला तो उसके पास थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, फिर स्किल होना चाहिए, फिर एबिलिटीज और नॉर्म्स होने चाहिए। मतलब ये कि उसके पास एक ऐसी थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जो उसको क्या करे, स्किल को डिफाइन करे कि ये थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको केमिस्ट स्किल्स के लेके जाएगी ये वाली पढ़ाई। आपने स्किल्स केमिस्ट्री वाले सीखने हैं, फिर इसके बाद आपके पास एबिलिटीज होंगी, वो आपको एबिलिटीज वो वाली आप में पैदा करवाएगा या आप में शुरू में होंगी। एंड देन आपके पास नॉर्म्स। तो 4 किस्म की बातें आपने जहन नशीन कर लेनी है। चौथी बात, तीसरी बात ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस देनी है। जो प्रोफेशंस होते हैं वो स्पेसिफिक सर्विस देते हैं। टीचर्स पढ़ाता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, तो ये उनकी स्पेसिफिक सर्विसेज होगी। जनरल ये है कि बंदा सब कुछ कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है, डॉक्टरी भी कर रहा है, दिन में इंजीनियरिंग भी कर रहा है, तो ये जर्नल सी बात हो गई जो कि कम ही लोग कामयाब होते हैं।
अगला, मेंबर ऑफ प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिस। जितने भी प्रोफेशंस के वो जितने भी मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन है, जो मतलब अब इससे मुराद ये है कि डॉक्टर, टीचर, हर कोई अपने जो प्रोफेशन में है वो मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन होंगे। उनके पास ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होता है पावर टू मेक डिसीजन, उनके पास डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए और उसे प्रैक्टिस करने की, उससे उसको अमल भी करने की, करवाने की ताकत होनी चाहिए। लाइक टीचर क्लास में है तो वो खाली ये नहीं लिखेगा कि डिसिप्लिन को फॉलो करो, तो ये तो हो गया उसके पास डिसीजन, ऑटोनॉमी की पावर, लेकिन उसने उसको प्रैक्टिस भी करवाना है क्लास में, तो बहुत पावर श्योर ही शुड बी। द प्रैक्टिस एज अ होल एज अ कोड ऑफ एथिक्स, तो जो प्रैक्टिस एंड पे वो करवाएगा वो मुकम्मल बेस होनी चाहिए कोड ऑफ एथिक्स पे। मतलब कोड ऑफ एथिक्स मतलब वो सारे लॉ एथिक्स के फॉलो करे, मॉरल वैल्यूज को। अब ये नहीं है कि वो टीचर पनिश कर दे, मुंह पे चपेड़े लगा दे, तो फिर वो कोड ऑफ एथिक्स से बाहर की बात करेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम दोबारा देखें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये बहुत ज्यादा इजी है। तो प्रोफेशन को क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सटेंडेड एजुकेशन होनी चाहिए, दूसरा उसके पास बेसिक लिबरल फाउंडेशन होनी चाहिए, मतलब उसके पास बेसिक लिबरल एजुकेशन होनी चाहिए या फाउंडेशन कह ले। अगला दूसरा ये है कि एजुकेशन के लिहाज से देखें तो उसके पास थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए जो उसका डिफाइन करे स्किल को, कि उसके पास अब ये पढ़ने से कौन सा स्किल आएगा, और देन उसके पास एबिलिटीज और नॉर्म्स होनी चाहिए। तीसरी हमने ये बात की कि अ प्रोफेशन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सर्विस, तो जो भी प्रोफेशन है वो स्पेसिफिक सर्विस देंगे। उनके पास अगली बात ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आ पावर टू मेकिंग डिसीजन एंड प्रैक्टिस, और जितनी भी प्रैक्टिस है, जितने भी वो उसको अमल करवाएंगे वो कोड ऑफ एथिक्स पे होने चाहिए। तो आपने कुछ हेडिंग याद कर लेनी है, एक्सटेंडेड एजुकेशन, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, आ स्पेसिफिक सर्विस, ऑटोनॉमी और कोड ऑफ एथिक्स। बढ़ा चढ़ा के आप खुद इसे इजीली लिख सकते हैं। अगला ये है रेगुलेशन एंड परफॉर्मेंस। ये भी मिलता जुलता है, प्रोफेशन का हिस्सा है। तो इसमें आपने क्या करना है, प्रोफेशन ऑफर पीर रिव्यू फॉर द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। जो प्रोफेशंस है वो पीर, पीर कहते हैं ग्रुप, ग्रुप को, लाइक माय पीर्स, ये जो आपके साथ जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनके डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ जो फेलो हो तो मैं कहूँगी माय पीर्स, पीर्स ग्रुप, तो वो बच्चों के ग्रुप्स को पीर कहते हैं। तो प्रोफेशन ऑफर्स पीर रिव्यू फॉर द मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। अच्छा, जो बाकी मेंबर्स है प्रोफेशन के लिए, उनके लिए प्रोफेशन क्या करेंगे, अपना रिव्यू लिख बताएंगे बेस्ड अपॉन द पीर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगला है सेकंड प्रोफेशन फोकस करेंगे ड्यूटी टू सर्व द गुड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल एंड नॉट जस्ट वंस ऑन गुड फॉर दैट ऑफ वंस क्लाइंट। तो वो पूरी कौम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, उनकी अच्छाई के लिए, ना कि सिर्फ एक बंदे के लिए और अपने फायदे के लिए। अगला है प्रोफेशंस को अलाउ किया जाता है कि नहीं अलाउ किया जाता है कि वो किसी भी अनऑथराइज्ड या गलत बात में पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। अगला चीज ये है कि प्रोफेशनल एवोल्यूशन इज इन मोस्ट केसेस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ मैल प्रैक्टिस एज अपोज टू नेग्लिजेंस, सो दैट अ प्रोफेशनल विल ओनली बी हेल्ड liable where he conduct himself in a manner that is not benefiting to that profession। कहता है जो प्रोफेशनल वो वाले, जब उनकी एवोल्यूशन की जाती है, असेस किया जाता है प्रोफेशनल्स को कि वो कैसी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है जो कि मैल प्रैक्टिस एज अपोज टू नेग्लिजेंस, सो दैट अ प्रोफेशनल विल ओनली बी हेल्ड लायबल वेयर ही कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ मैनर दैट इज नॉट बेनिफिटिंग टू दैट प्रोफेशनल। कहता है कि जब हम प्रोफेशनल्स को रिव्यू करते हैं तो वो जिन असूलों पे बेस हम रिव्यू करते हैं, उन्हें जांचते हैं, परखते हैं, वो ऐसे मैल प्रैक्टिस होती है, अच्छा अमल जो अच्छा अमल नहीं होता, कमजोर अमल, वो उन पे बेस होती है कि अगर कोई कोताही हो भी जाए तो उसमें जो है वो कोई फायदा उस प्रोफेशन को नहीं होता। वेरी कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ मैनर दैट इज नॉट बेनिफिटिंग टू दैट प्रोफेशन। तो हमने चार परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा। पहला यही पढ़ा कि जो प्रोफेशन है वो अपने जो पीर रिव्यू जिसके साथ काम करते हैं उनके बारे में रिव्यू लिखता है, जो कि दूसरे मेंबर्स जो प्रोफेशन है, दूसरे प्रोफेशन है, उनको फायदा देता है, ऑफर करता है रिव्यू। तो दूसरा ये है कि वो अपनी ड्यूटी पे फोकस करते हैं ताकि माशरे को ऑन दी होल फायदा पहुंचे, अपने बारे में नहीं सोचते। तीसरा ये कि अगर वो किसी भी गलत बात में नहीं पाए जाते। चौथा ये कि अगर उनकी एवोल्यूशन भी करवाई जाए तो वो बात मोस्ट केसेस ज्यादातर ऐसे रूल्स पे बेस्ड होती है जो कि सही नहीं होते, तो ये नुकसानदेह होता है उस प्रोफेशन के लिए।
तो ये उनकी रेगुलेशन के लिए सादा सी जुबान में 3-4 बातें थी जो आई होप सबको समझ आ गई हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आता, फिर भी आप इसको देख लें, अगर आ गया तो कुछ ना कुछ तो लिख ही सकेंगे हम लोग। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कुछ आसान सी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल की नशोनुमा कैसे होगी, उसमें बेहतरी कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम स्टडी पढ़ेंगे, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद हम कंसल्ट करेंगे क्या हम सही पढ़ रहे हैं, फिर हमारी मॉनिटरिंग होगी, फिर हम लर्न करेंगे और फिर इस तरह से हम उसकी रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा टायर है, आप इसको याद कर लें। जैसे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, अगर हम स्टडी करेंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लू ब्लू याद रख लें तो ये ज्यादा, जैसे मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग टीचर आता है, वो मॉनिटर है, वो हमें पढ़ाता है, हम स्टडी करेंगे इस तरह से तो हम इम्प्रूव करेंगे। मॉनिटरिंग, टीचर आया, उसने हमें पढ़ाया, हमने स्टडी की और इम्प्रूव किया, इसके बाद हमने उसी चीज की प्रैक्टिस की। हमने प्रैक्टिस की तो मतलब हमने क्या किया, लर्न किया। लर्न करने के बाद क्या हो, हमने कंसल्ट किया इर्द गिर्द से कि क्या वाकई हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, हम कॉपरेट करके देखेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होगा, हम जो उसके बाद हम उसी का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, लाइक जो हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पर्सनैलिटी से। तो आसान सा टायर है जी, गोल सा सर्कुलर सा, आप इसे याद कर लें। सब टीचर से आपने याद करना है, टीचर क्लास में आता है, हमें पढ़ाता है, तो उसकी जगह क्या करें, मेंटोरिंग। मेंटोर आया, उसने मेंटोरिंग की, हमने पढ़ा, हमने इम्प्रूव किया, फिर क्या हुआ, हमने प्रैक्टिस की, फिर हमने इस तरह से लर्न किया, फिर इसके बाद हमने इर्द गिर्द पूछा, हमने अब एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, कंसल्टिंग की, और इस तरह से हमने रिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, the word fiduciary has its roots in the Latin word fiducia, which means confidence। तो अगर आपको वो पूछ लें कि fiduciary का क्या मतलब है, या fiduciary, ठीक है, fiduciary का क्या मतलब है, तो आप जो है आपको fiduciary लिख सकते हो। fiducia जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्फिडेंट, इजी सा। तो अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज दस अ रिलेशनशिप ऑफ अ कॉन्फिडेंस। तो ये भी कॉन्फिडेंस के इर्द गिर्द घूम रहा है पहली 2 लाइनों में। तो पहला तो ये हो गया कि लैटिन वर्ड है फ्यूडिशरी, ये वर्ड फ्यूडिशिया से निकला है जिसके मानी कॉन्फिडेंस के हैं। आगे ये है कि अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप इज दस अ रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस। ग्रीक वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड है, मीनिंग कॉन्फिडेंस है, और ये क्या निकला है जी, रिलेशनशिप शो करता है कॉन्फिडेंस का। द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड विद दैट रिलेशनशिप इज रेफर टू एज द फिड्यूशरी। तो जिस इंसान के साथ हमने कॉन्फिडेंस को पढ़ना है, उस मतलब उसका कॉन्फिडेंस पढ़ना है, उसका रिलेशन किसी और के साथ पढ़ना है इन रेफरेंस टू कॉन्फिडेंस, तो हम उसे कहेंगे फिड्यूशरी। If a fiduciary abuses his or her position to obtain an advantage or benefit at the expense of the confiding party, the latter will be able to seek relief from a court of equality to prevent such advantage acquiring to the fiduciary। और अगर कोई ऐसी पार्टी जो कि क्या करे, उसको जो कॉन्फिडेंस है उसको हाथ में लेके उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो इसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। तो ये एक इजी सी टर्म है फिड्यूशरी, आप इसको बस एक दफा पढ़ लें यहीं से, ये इजी है। हम इसके पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करते हैं। तो क्या है जी फिड्यूशरी, ये लैटिन वर्ड है, फिड्यूशिया से निकला जिसके मानी कॉन्फिडेंस के हैं। बेसिकली ये शो करता है रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस को। तो वो पर्सन जिसका कॉन्फिडेंस रिपोज्ड विद इन दैट रिलेशनशिप इज रेफर टू एज द फिड्यूशरी। अगर कोई भी फिड्यूशरी है वो अब्यूज करे किसी और की पोजीशन को, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, मतलब उसके पास कोई ओहदा है, वो किसी और को, वो क्या हुआ, फ्यूडिशरी हुआ जिसके पास ओहदा है, वो अब्यूज करे, किसी को तंग करे किसी और की पोजीशन को ताकि उसे कोई फायदा हासिल हो सके या किसी दूसरे को वो नुकसान पहुंचा सके इस बिना पर, क्योंकि वो कॉन्फिड्यूशरी है, तो वो क्या करेगा, लेटर विल बी एबल टू सीक रिलीफ फ्रॉम कोर्ट ऑफ इक्विटी टू प्रिवेंट सच एडवांटेज acquiring और occurring to the fiduciary। तो वो फिड्यूशरी से बचने के लिए कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो सिंपली फिड्यूशरी क्या है, वो कॉन्फिडेंशियल पार्टी है जो कि किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है अपने ओहदे की वजह से। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था जी प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशन में आया हुआ डिफरेंस। तो प्रोफेशनलिज्म कम्स विद ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच मस्ट एट ऑल द
times be discharged by the professionals for the benefit of the public and large. तो प्रोफेशनलिज्म क्या है? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोफेशनल्स शो करते हैं। तो इजीली आप ये भी कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस विच इज शोन बाय द प्रोफेशनल्स कॉल्ड एज अ प्रोफेशनलिज्म। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म comes or related with obligation or responsibility which must at all the time be discharged by the professionals for the benefit of the public at large। तो अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ खसूसियात रिस्पॉन्सिबिलिटी जो को प्रोफेशनल्स को शो करनी चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। तो मेंबर ऑफ प्रोफेशंस आर बाउंड टू डिलीवर अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वर्क। कोई भी प्रोफेशन जो है उसको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम डिलीवर करना चाहिए। दिस मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर पैरामाउंट एंड देयर वर्क इज टू बी हैंडल्ड इन अ प्रोफेशनल मैनर्स। इसका मतलब यह है कि जो ट्रस्ट क्लाइंट ने उन पे किया है वो उस पर पूरा उतरे हैं और वो उसे प्रोफेशनल अंदाज से हैंडल कर रहे हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? हमने देखा कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि विच मस्ट एट ऑल द टाइम, जो कि जरूरी हर दफा डिस्चार्ज या शो करनी चाहिए प्रोफेशनल्स को अवाम की फायदे के लिए। जो मेंबर्स हैं ऑफ प्रोफेशनल्स वो बाउंड होते हैं डिलीवर करने के क्वालिटी वर्क को, ठीक है, based upon the standard. This means that the interest of the clients are paramount. Work is to be handled in a professional manner. आगे चलते हैं। द ऑब्लिगेशन टू, कौन कौन से फरीजे हैं जो इन्हें करने चाहिए? वर्क विद रीजनेबल केयर, केयर के साथ करें, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखें, एक्ट विदाउट नेग्लिजेंस, कोई कोताही या निगहदाश्त ना शो करें, क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें, और मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है लाइक कमजोर प्रैक्टिसेस, गलत अमल, वो ना करें। तो ये कुछ आसान से हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। वर्क विद रीजनेबल केयर, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्ट विदाउट नेग्लिजेंस, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट, नॉट टू एंगेज इन मैल प्रैक्टिसेस। सिर्फ एक एक लफ्ज याद कर लें, रीजनेबल केयर, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, without negligence, satisfaction of client, or not to engage in a malpractice. टीचिंग एज अ प्रोफेशन, तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? व्हाई डू यू बिकम ए टीचर? आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? तो ये ज़्यादा बेहतर पता है आपको, ये आप अपने पास से लिख सकते हैं, मैं रेफर नहीं करती कि आप इसको रट्टा लगाएं। फिर भी आप देख लें, स्लाइड अच्छी बनी हुई है। 85% टू मेक अ डिफरेंस इन द चिल्ड्रन, 66 टू बी पार्ट ऑफ दोज मूवमेंट्स, 39। ये उन्होंने एक चार्ट सा इन्फोग्राफिक बनाया जिसमें वो बता रहे हैं कि हम एजुकेटर्स क्यों बनना चाहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप अपने पास से लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर्स में रिपीटेड है। अफेक्टिव टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपने 4 बिलीफ्स याद कर लेने हैं अफेक्टिव टीचिंग के। कुछ यहाँ से करिए, बाकी आप अपने पास से लिखिएगा। इट इज द टीचर हु मेक्स द डिफरेंस इन द क्लासरूम। पहला हमारा यकीन ये है कि टीचर ही होता है जो कि डिफरेंस पैदा करता है क्लासरूम में। दूसरा ये है, बाय द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूल लर्निंग इज द एबिलिटी ऑफ द टीचर है। by far the most important factor in school learning is the ability of the, जितनी भी लर्निंग स्कूल में होती है वो टीचर की एबिलिटी की वजह से होती है। खैर मैं इस पर कुछ खास यकीन तो नहीं रखती, टीचर की एबिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, पड़ता होगा। आगे, देयर इज एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट टीचिंग दैट मस्ट बी नोन बाय द टीचर। कहता है जो इतना ज्यादा नॉलेज है टीचिंग के बारे में वो टीचर को पता होना चाहिए। चौथा यह है कि द टीचर मस्ट बी अ डिसीजन मेकर, तो टीचर को डिसीजन करना चाहिए, ना कि सिर्फ बोर्ड रखना चाहिए। सो एबल टू ट्रांसलेट द बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट टीचिंग इनटू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग। आसान से 4 सिर्फ बिलीफ्स हैं, यकीन है जो कि आप याद रख सकते हो। अ टीचर हु मेक्स द डिफरेंस इन द क्लासरूम, अ टीचर थ्रू हिज एबिलिटी which is the most important factor in school learning, and he should know the extensive body of he or she should must know the extensive body of knowledge about teaching, and the teacher must be a decision maker to translate the body of knowledge about teaching so that they can increase the learning abilities of student or even the learning। आसान से 4 बातें हैं, जल्दी से आप रिवाइज कर लो। मैं यहाँ पे आपके लिए फ्लो चार्ट भी बना रही हूँ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, मैं इस पे कंटेंट डालती हूँ। और अगर आप मेरे साथ ये स्पोर्ट्स शो करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि लाइक मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका थोड़ा सा फल मिल रहा है, इसके रिव्यूज आप दो। और बस अल्लाह आपको खुश रखे। तो तीन बातें हैं कि टीचर हु क्रिएट्स द डिफरेंस, टीचर हु क्रिएट द डिफरेंस इन द क्लासरूम। अगला है टीचर इज द ओनली फैक्टर हु इंक्रीज द एबिलिटी लर्निंग इन द स्कूल थ्रू हिज एबिलिटीज। लर्निंग को इंक्रीज करता है टीचर थ्रू हिज एबिलिटी। तीसरा ये है कि ही और शी शुड नो द एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ टीचिंग नॉलेज। अगला, द टीचर को डिसीजन मेकर होना चाहिए, टीचर को डिसीजन मेकर होना चाहिए ताकि वो टीचिंग नॉलेज को ट्रांसलेट करे और लर्निंग को इंक्रीज करे। तो आसान सी चार बातें हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज ऑफ टीचिंग टू। बात यह है कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ पढ़ाती ही रहती हूँ। अगला है जी टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? बहुत आसान है। आवर सर्विस टू द पब्लिक एज अ प्रोफेशनल टर्न्स आउट टू बी डेडिकेटेड व्हेन आउट मॉरल एथिकल एंड रिलीजियस वैल्यूज सर्व आउट सर्व एज आउट बेडरॉक फाउंडेशन। तो जो टीचर हैं जी वो अपनी जो रिलीजियस एथिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बुनियादी फाउंडेशन होता है। जो बुनियादी सोसाइटी को रखने किसी भी सोसाइटी को रखने से पहले जो वो नहीं रखते, उसको फाउंडेशन कहते हैं। तो उसकी बुनियाद रखने से पहले उसकी बुनियादें बुनियादें रखने को फाउंडेशन कहते हैं। तो टीचर एक इम्पॉर्टेंट बंदा है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मोरल एथिकल और रिलीजियस वैल्यूज को सर्व करता है सोसाइटी की बुनियाद रखने के लिए या बनाने के लिए। इफ यू टेक अगर आप टीचिंग प्रोफेशन लेते हो उसका मतलब ये है कि आपको इस बात का साथ आगाही होनी चाहिए कि आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है और आपको एंड आ कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलप और साथ साथ आपने अपने पेशे में बेहतरी भी लानी है। दो आसान सी बातें हैं कि जो टीचर है वो पब्लिक प्रोफेशनल्स हैं, आवाम को खिदमत करते हैं, अपनी एथिकल रिलीजियस और वैल्यूज को सर्व करते हैं। व्हेन आउट मॉरल टू बी डेडिकेटेड व्हेन आउट मॉरल एथिकल एंड रिलीजियस वैल्यू सर्व एज आउट बेडरॉक फाउंडेशन। और दूसरा ये कि टीचर एक ऐसे प्रोफेशन है जिनको पता होना चाहिए कि उन्हें लंबी प्रिपरेशन की जरूरत है। और दूसरा ये कि उनको साथ साथ अपने प्रोफेशंस की डेवलपमेंट भी करनी होगी, इसमें बेहतरी भी लानी होगी। तो टीचर एज अ वोकेशन, वोकेशन क्या है? आपका पेशा। टीचिंग एज अ पेशा क्या है? तो टीचर मार्क इज ट्रीटेड एज अ टीचर फॉर टीचिंग स्टूडेंट द लेसन एवरी डे। ही टीच एवरीथिंग ही न्यू, शोइंग ऑफ हिज मिजरी ऑफ द सब्जेक्ट बट नॉट इवन कंसिडरिंग द फीलिंग ऑफ हिज स्टूडेंट टूवर्ड डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो कहते हैं टीचर मार्क की कहानी है कि टीचर मार्क जो है वो इस ट्रीट वो एक ऐसे टीचर के तौर पर उसे ट्रीट किया गया कि वो जो रोज लेसन पढ़ाता था, उसको उसकी एवोल्यूशन जब की गई तो वो क्या करता था? ही टीच एवरीथिंग, जो उसको पता होता था वो सब पढ़ा देता था। जितना उसको लगता था ना, शोइंग ऑफ हिज मिजरी ऑफ द सब्जेक्ट, जितना उसको लगता था कि बताना चाहिए वो बताता था सारा। बट लेकिन वो ये जो स्टूडेंट्स की फीलिंग है कि क्या वाकई उन्हें समझ आई है या नहीं आई, क्यों मुंह बना रहे हैं बच्चे, कहाँ से अटक चुके हैं, तो वो इन चीजों को कंसीडर नहीं करता था। ऑन द अदर हैंड, अ वॉलंटियर नेम जॉय इज एड्रेस एज अ टीचर फॉर टीचिंग एंड सर्विंग द चिल्ड्रन ऑफ अ फॉर रूरल कम्युनिटी। लेकिन दूसरे हाथ में जो जॉय था वो बहुत रूरल गांव के देहाती कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाता था, पढ़ाती थी। शी इज गर्ल, तो शी ट्रेवल ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर एवरी डे फॉर द सेक ऑफ हर स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और रोज वो 20 किलोमीटर चल के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जाती थी। एंड सर्विंग द चिल्ड्रन ऑफ अ फॉर रूरल कम्युनिटी। अच्छा, तो ये कुछ एक किस्म का मार्क था जो कि पढ़ाई जा रहा है रोज, लेकिन कंसीडर नहीं कर रहा। और एक तरफ टीचर जॉय थी जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए 20 किलोमीटर चलकर उन्हें पढ़ाने जाती थी। प्रोफेशन वर्सेस ऑक्यूपेशन। अब प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में क्या फर्क है, आए देखें। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। प्रोफेशन वो होगा जो कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने ये करना है प्रोफेशन। जबकि आपका जो अच्छा प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, इसके बाद जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो एक तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सोचना शुरू करते हैं, दूसरा ये कि जो आप वहाँ पढ़ाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स, वो प्रोफेशंस है। जबकि आपका जो पेशा है वो जॉब की ट्रेनिंग पे ही शुरू हो जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एजुकेशन, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जैसे डॉक्टर है, जैसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना।
लेंथ वैरी करती है। अगर आपने बनना है एस्थेटिक क्लिनिक खोलना है तो आपको 6 मंथ का डिप्लोमा चाहिए। पार्लर खोलना है 6 मंथ ट्रेनिंग कर लो, बन जाओगे। मेंटल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैनुअल वर्क ज्यादा होता है, जो पहले हुआ हुआ है उसी को करना होता है। इसके डिसीजन बेस्ड होते हैं साइंस पे, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। जबकि यहाँ पे आपको पहले से लोग बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, गाइडेड होता है। वैल्यूज बिलीफ एंड एथिक्स इंटरगल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो जितने भी आपके यकीन खूबियां होती हैं वो इस दौरान आपका हिस्सा बनती हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। अगला है जी वैल्यूज बिलीफ एंड एथिक्स नॉट द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आपकी वैल्यूज एथिक्स और वो बिलीफ यकीन जो होते हैं उसमें कुछ खास काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप मिठाई बना रहे हो तो आप वैसे ही मिठाई बनाओगे ना, आप कोई नया तरीका तो ईजाद करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता उस तरीके से तो बननी नहीं है। अगला है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर पीएचडी करनी है तो करनी ही है। ज्यादातर कमिटमेंट वे में वैरी होती है, इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ऑटोनमस होती है, मतलब सुपरविजन जरूरी भी होती है बाजू का और नहीं भी। इसमें आपको सुपरवाइज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह काम करना। अनलाइकली टू चेंज प्रोफेशन, ज्यादा नहीं करते प्रोफेशन। इतना पढ़ लिया, आप कौन करेगा आके चेंज प्रोफेशन। लेकिन पाकिस्तान में सोचना पड़ता है जब आप कोई डिग्री ले लें, क्योंकि यहाँ पे लाइक वो काउंसलर ही नहीं है, सब्जेक्ट काउंसलर, या आपने आगे क्या चुनना है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको डिग्री चेंज करने के बारे में एट द पॉइंट सोचना भी पड़ता है बात का, जब आपको जॉब नहीं मिल रही होती। तो मोटिवेटेड, ठीक है। अनलाइकली टू चेंज प्रोफेशन, ऑफन चेंज जॉब, कर कर लेते हैं। पार्लर वाला पार्लर करेगा, अगर बाहर का कहीं वीजा शीजा लग गया तो चला जाएगा, तो चेंज कर लेते हैं, क्यों नहीं कर लेते। कमिटमेंट, डॉलर रिवॉर्ड, मोटिवेटेड बाय डॉलर रिवॉर्ड। उनका जो डॉलर रिवॉर्ड होता है वो उन्हें मोटिवेट करता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें $30 मिलेगा। इनकी कमिटमेंट होती है कि हमें इतने डॉलर दें तो हम इतना काम कर लेंगे, तो कोई मोटिवेशन नहीं होती डॉलर्स को लेकर। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉयर इज प्राइमरी अकाउंटेबल। यहाँ पे हर बंदे का जवाबदेही है, ठीक है। यहाँ पे आप एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो आपने सबका काम करने के लिए रखा है, वो जवाबदार सारा होता है। जी हाँ। अगला चलते हैं अजम्पशन अबाउट टीचिंग, कि क्या जजमेंटल अजम्पशन बनी अबाउट टीचिंग के बारे में। तो कार्ड ने डिस्क्राइब किए क्लेम्स और अजम्पशन। बेसिकली उसने कहा कि टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, मान लिया। अगला, हर प्रोफेशन ही एक्टिविटी है, अ लर्नड एक्टिविटी। सो दैट एनी प्रोफेशनल इंटरप्राइज, दूसरा ये उसने कहा कि कोई भी प्रोफेशनल इंटरप्राइज इज डीपली implicated in ethical concern and considerations, and therefore the teaching is also an enterprise which is deeply and significantly implicated in ethical concern and consideration। उसने कहा कि कोई भी जो प्रोफेशनल है वो इंटरप्राइज है, डीपली, गहराई, ठीक है, खास तौर पर वो क्या है, इम्प्लीकेटेड है, कुछ एथिकल कंसर्न्स है उसके। कोई भी प्रोफेशन है तो वो एक खास मोरल वैल्यूज में रह के काम करेगा और उन्हीं को ही कंसीडर करेगा। जबकि टीचिंग एक ऐस इसीलिए देयरफॉर इसीलिए टीचिंग एक इज आल्सो एन इंटरप्राइज व्हिच इज डीपली एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्लीकेटेड इन एथिकल कंसर्न। इसी तरह से जो टीचिंग है इसमें ज्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है मोरल वैल्यूज का और कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन मतलब दूसरा क्या हमारे बारे में, हमें हमें कैसे कंसीडर कर रहा है, तो करना चाहिए। तो कार की जो assumption ये है, पहली ये कि ये एक एक्टिविटी है, द टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। दूसरा ये कि कोई भी प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल इंटरप्राइज जो है, वो डीपली इम्प्लीकेटेड है इन एथिकल कंसर्न एंड कंसिडरेशन। देयरफॉर जो टीचिंग है वो आल्सो एन इंटरप्राइज है व्हिच इज डीपली एंड सिग्निफिकेंटली implicated in ethical concern and consideration। ethical and consideration implicated। तो आपको ये 3 बातें याद करनी है, जो आपने याद कर ली होंगी आई गेस। अगला, करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपके पास टाइम हो तो बुक से भी पढ़ लीजिएगा। तो कुछ खूबियां हैं, पढ़ते हैं। वी नीड रिफ्लेक्टिव, रिसोर्सफुल एंड रिस्पेक्टिव टीचर हु आर। सोसाइटी को जी जरूरत है, तो जो पहली 4 खूबियां ही बयान कर दी गई इधर वो ये हैं, रिफ्लेक्टेड, रिसोर्सफुल एंड रिसेप्टिव टीचर्स। रिफ्लेक्टिव,
जो कि जाहिर कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके अपनी पर्सनैलिटी से हर चीज को। रिसोर्सफुल, जिनके पास इंफॉर्मेशन हो, रिसोर्सेज हो, और रिसेप्टिव टीचर्स। रिलेटेड बात करें, रिफ्लेक्टिव, आर से रिफ्लेक्टेड, रिसोर्सफुल एंड रिसेप्टिव टीचर। तो आप इसको इसको ऐसे याद करेंगे, सोसाइटी नीड्स आर रिफ्लेक्टिव, आर रिसोर्सफुल एंड रिसेप्टिव टीचर्स। अब ये क्या करेंगी, कीप्स ऑन प्रेजिंग, attempts to perform task in different way। स्टूडेंट्स की प्रेजिंग करेंगी, तारीफ करेंगी अच्छे कामों पे, और नए नए टास्क मुख्तलिफ तरीकों से सर अंजाम देंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे attempt to perform different task, to perform different task, attempt to perform different task। पहली हेडिंग आपकी होगी attempt to perform different task, teacher should be reflective, resourceful, receptive। Teachers should keep on praising of students, so attempt to perform task in a different skill। अगला, less eager to single out, less eager to single out what should not have been done। गुस्सा नहीं करना, less eagerness। अगर किसी ऐसी बात पे जो कि अभी नहीं हुई, वो काम हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो स्टूडेंट्स पे गुस्सा नहीं करना, less eager। अगला है willing to take and make teaching decision। तो अगली है जी बात आपकी टीचिंग डिसीजन की। अगला है रेडी टू इनोवेट इन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। इनोवेट, कुछ ना कुछ नया लाएं अपने टीचिंग मेथड्स में, इनोवेट करें। अगला, कीप ऑन मिनिमाइजिंग डिफरेंस एंड मैक्सिमाइजिंग सिमिलैरिटी अमंग दिस स्टूडेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को कम करें, स्टूडेंट्स में इख्तलाफात को मिटाएं और सिमिलैरिटीज को उजागर करें। विलिंग टू डिवोट टाइम टू टीच विद लाफ्टर, खुशी के साथ पढ़ाएं, फन के साथ पढ़ाएं। विलिंग टू डिवोट टाइम टू टीच विद लाफ्टर। अगला है फाउंड ऑफ फैसिलिटीज लर्निंग प्रोसेस अवॉइडिंग देयर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करें और फॉन्ड ऑफ हो फैसिलेटिंग स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को फैसिलेट करने में उन्हें शौकीन हो या उन्हें खुशी महसूस होती है। एबल टू सी स्टूडेंट एज होलिस्टिक यूनिक, हर बच्चे को वो लादा देखें, ठीक है, एबल टू सी देम एज अ होलिस्टिक यूनिक इंडिविजुअल। चले आए दोहराते हैं मेरे साथ। तो टीचर को आर 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 होना चाहिए, यानी कि आर 3 बार आर क्यूब होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव, रिसोर्सफुल एंड रिसेप्टिव। सबसे पहले टीचर को क्या होना चाहिए, प्रेजिंग करने, कीप्स ऑन प्रेजिंग स्टूडेंट्स एंड अटेम्प्ट टू परफॉर्म टास्क इन अ डिफरेंट वे। टीचर शुड बी अ लेस एगर टू अ सिंगल आउट व्हाट शुड नॉट हैव बीन डन, willing to make decisions, ready to innovate in their teaching practices, keep on minimizing the difference and maximizing the similarities among students, willing to devote time to teach with laughter or to teach with fun. Agla, fond of learning process and show less frustration or avoiding frustration, able to see student as a holistic individual। तो हर बच्चे को वो होलिस्टिक इंडिविजुअल के तौर पर देखें, नाइदर सबको एक जैसा ही देखें। तो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। खुशखबरी ये है आपके लिए कि मैं जो ये स्लाइड्स हैं और इस जैसी और स्लाइड जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, वहां से ले लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अगर चाहते हो कि सेकंड चैप्टर का भी बना के डालूं तो प्लीज कमेंट में लिख दो, ताकि मुझे पता चले कि लोग चाहते हैं। रिवाइज कर लो मेरे साथ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रोफेशन इज अ वोकेशन जो कि रिक्वायर करता है एडवांस एजुकेशन प्लस एडवांस ट्रेनिंग को। ये गार्नर ने दी, गार्नियर से निकला गार्नर, एडवांस एजुकेशन और एडवांस ट्रेनिंग। अगली डेफिनेशन बेल ने दी, तो जैसे डोर बेल वो जाके भाग जाते हैं, वो क्या है, एक लर्नड एक्टिविटी है। टीचिंग इज अ लर्नड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मल ट्रेनिंग बट इन अ ब्रॉड इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। तो ये हो गया। इसके बाद हमने कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ी, तो आसान सी करेक्टरिस्टिक थी, ये उस फिलॉसफी पे बेस होनी चाहिए जिसकी हमने ट्रेनिंग हासिल की। जितने भी प्रोफेशंस हैं वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि पब्लिक को पहुंचाया जा सके फायदा, जो कि एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के थ्रू हासिल किया गया है। तो जितने भी प्रोफेशन है उन्हें काम से पहले तैयारी की जरूरत है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक नेचर। अगला ये कि स्पेशलाइज स्किल होता है कोई ना कोई, और अगला ये कि जितने भी प्रोफेशन है उन्हें अपने तमाम खिदमत आवाम की खिदमत के लिए देनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन में मजीद चलें तो हमने कहा कि जो प्रोफेशन है उसके रिक्वायर होता है, उसे चाहिए एक्सटेंडेड एजुकेशन और लिबरल फाउंडेशन, बेसिक लिबरल फाउंडेशन उसके पास होनी चाहिए।
मतलब आजाद तबाह ख्यालात का बंदा हो, बेसिकली कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उसके पास थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज हो जो कि उसे एक डिफाइंड स्किल की तरफ ले जाए, एबिलिटीज और नॉर्म्स की तरफ ले जाए। अगला ये कि उसके पास कोई स्पेसिफिक सर्विस होनी चाहिए जो कि वो प्रोवाइड करे लोगों को। अगला उसके पास डिसीजन होना चाहिए और उसको प्रैक्टिस भी करवा सके। तीसरा ये कि उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कोड ऑफ एथिक्स पे बेस होनी चाहिए। रेगुलेशन परफॉर्मेंस, ये जो है जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको पीर रिव्यूज देने चाहिए अपने मेंबर्स के बारे में फॉर द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन। मतलब कोई टीचर है तो उसे अपने रिव्यूज लिखने चाहिए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था अपने पीर्स के साथ, ताकि बाकियों को मदद हासिल हो सके। दूसरा ये कि उन्हें ऐसी ड्यूटीज करनी चाहिए जो कि ऑन दी होल कम्युनिटीज की अच्छाई के लिए हो। तीसरा ये कि वो किसी गलत काम में ना हो। चौथा ये कि जितने भी जब प्रोफेशनल की एवोल्यूशन होती है तो वो एवोल्यूशन जो होती है वो ऐसे रूल्स पे बेस्ड अपॉन होती है जो कि बाज़ औक़ात क्या करता है, उस प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह होती है। अगला ये आप देख लो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत आसान था। मेंटोर से पढ़ा, स्टडी किया, प्रैक्टिस की, लर्न किया, कंसल्टेशन की और रिफ्लेक्शन की। फिडेशरी जो है वो बहुत नहीं आता, रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस है, लेटन वर्ड है, फिडिशिया से निकला। इसके मतलब मैंने ये बताया कि ये एक ऐसी कॉन्फिडेंशरी पार्टी है जिसके पास इख्तियार होता है, कॉन्फिडेंशरी पार्टी है किसी भी इंडस्ट्री में, कि वो किसी दूसरे पर्सन को उस कॉन्फिडेंस अपनी पोजीशन की बेस पे फायदा या नुकसान पहुंचा सके। तो आप फिडेशरी के खिलाफ कोर्ट में वो इंसान जा सकता है और अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। आगे आ जाए प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशन जो है वो जो एक्ट है वो जो शो करते हैं प्रोफेशनल थ्रू आउट देयर कैरियर, वो प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म ऐसी रिस्पॉन्सिब प्रोफेशनलिज्म एक ऐसी ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि जो प्रोफेशनल है वो हर वक्त शो करता रहता है, दिखाता है, डिस्चार्ज करता है, ताकि जिससे पब्लिक को फायदा पहुंचे। अगला है कि दूसरा पॉइंट ये है अब इसका कि वो बाउंड होते हैं कि अच्छा काम डिलीवर करें। तीसरा ये कि उन्हें अपने क्लाइंट्स के उस पे यकीन पे पूरा उतरना चाहिए। अगला ये अगली कुछ और उनकी ऑब्लिगेशंस है, वो ये कि उनको रीजनेबल केयर शो करनी चाहिए, मेंटेनेंस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, कोई भी जो है वो गलती नहीं शो करनी चाहिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए और किसी भी मैल प्रैक्टिस में एंगेज नहीं होने चाहिए, गलत काम है। अब आगे इफेक्टिव टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है। तो आसान से कुछ बातें जो मैंने बताई हैं, टीचर डिफरेंस करता है क्लासरूम में, डिफरेंस पैदा करता है क्लासरूम में। दूसरा ये कि टीचर जो है वो स्कूल की लर्निंग को बढ़ा सकता है अपनी एबिलिटीज की जगह की बुनियाद पे। अगला ये कि जो एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ नॉलेज है जो टीचिंग का है उसे वो जो टीचर है उसे पता होना चाहिए। और चौथा ये कि उसे डिसीजन करने देना चाहिए या वो डिसीजन कर सकता हो ताकि वो टीचिंग नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स तक मुहैया कर सके और इससे वो लर्निंग को इंक्रीज कर सके। तो अगला है जी प्रोफेशन एंड वोकेशन, के प्रोफेशन क्या है और आपका पेशा क्या है। तो इसमें हमने डिफरेंस अच्छी तरह पढ़ लिया है। टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, तो दो मेन से पॉइंट पढ़े थे। पहले की अगर मैं हेडिंग लिखना चाहूँ तो वो ये है कि जो टीचर है वो अपनी मोरल रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज को शो करता है ताकि किसी भी सोसाइटी की बुनियादों को रख सके। बेड रॉक होता है मजबूत करना। अगला है जी जो प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशनल है जो उसका प्रोफेशन है, जैसे आप टीचिंग है, टीचिंग में आपको ये कमिटमेंट करनी है कि आपने लॉन्ग पीरियड के लिए चलना है और आप अच्छी तरह से इसके लिए तैयार होना है और इस दौरान आपने डेवलपमेंट शो करनी है अपने प्रोफेशन। ये डिफरेंस थे जो हमने डिटेल में पढ़े हैं। प्रोफेशन लॉन्ग टर्म होता है, ऑक्यूपेशन लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये लॉन्गर कमिटमेंट है, वो इतनी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में के जो टीचर्स होते हैं वो प्रोफेशन है और ऑक्यूपेशन जो आपकी जॉब ट्रेनिंग वगैरह से हासिल की जा सकती है। इसके बाद जो आखिरी था वो है करेक्टरिस्टिक टीचिंग ऑफ अफेक्टिव टीचिंग। करेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव टीचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आसान सा है, इसमें यही लिखना है कि टीचर शुड do the different tasks. He should be able, she should be a less eager, willing to make decisions, ready to innovate teaching practices, keep on minimizing differences, and willing to devote time to teacher with laughter and frustration को अवॉइड कर दे और स्टूडेंट को एज इंडिविजुअल देखे, ना कि सबको एक ही जैसे देखे जी। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया है। ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म में फर्क और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स करें। ये स्लाइड में आपको गूगल ड्राइव में डाल के दे रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कीजिए।
Thank you so much for your watching. Allah Hafiz.